Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. Before starting today's video, I want to share a little information regarding our Study IQ website and how one can go and purchase a badge. We are getting a lot of queries from many of you stating that they are not been able to identify the website and then they don't know how to purchase a badge. So I'm here to help you with that. When you'll type Study IQ on Google, then this particular page, the website will open. And after you have to log in that website, put your phone number, and then you'll get an OTP. By applying that OTP, you'll log in the website. After that, on search bar, you have to search the course you're looking for. For example, if you're looking for law optional paper, you have to type law optional. Right now, the batch which is going on is Pratigya batch for 2026. So when you once you do that, then this particular page will open. Then you have to click on buy now. Now, what a lot of students do, they click on buy now and they keep on doing that and they forget to use their promo code. So, अगर आप promo code use नहीं करोगे, then you have to pay the price which is shown on the screen right now, right? For platinum, it's 25 grand almost, and for gold, it is 16,249, right? So, if you don't use the promo code, then you will not get the extra discount. A lot of times we get this query from students that some of them have gotten it for a lesser price, but others have not. The reason is that they have not used the promo code, right? So promo code जो हम अपनी बहुत सारी जो videos होती है उसमें बताते भी हैं कि use our promo code, so वो आपके ही benefit के लिए होता है. So if you'll use the promo code and you'll type Hina Live, which is my code, and you'll apply, then this is the price you'll get for platinum. राइट अगर वैसे आप गोल्ड सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई करोगे यू विल गेट द लेसर अमाउंट सो द बैच विच वाज फॉर 25,000 विल नाउ बी अवेलेबल फॉर 20,000 right just because you applied the promo code. So never forget to do that. Whenever you will buy an optional paper of law, then use Hina Life and you will get a good discount on the price which is showing on the screen, right? So after getting this discount, now you click on buy now, and from here proceed to pay. Now you can select any of the payment methods. So once the payment will be received, it will be successful. Your course will start showing in the the bar my purchases. So once you will buy the course, then when you click on my account, then in my purchases your course will be available. तो जो भी live classes होंगी जो या पहले की कोई recorded lectures होंगे PDFs होंगे PPTs होंगी everything you will get after your payment will be successful. So my purchases में आपके courses होंगे आपने multiple courses purchase किए तो सारे my purchases वाले जो link है उसके अंदर आ जाएंगे. And then you can select your course and of course watch your classes, right? So it's a very basic thing, but still a lot of confusion was there, and we wanted to make sure that you guys know everything whatever needs to be known. So this is it, and if you have any other questions you can ask our team, you can contact them, and you'll all the doubts will be clarified. ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग विद काउंसलिंग. तो अगर आपको कोई किसी को भी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो जो ये वीडियो होगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है वो अवेलेबल है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट एंड यू वॉन्ट काउंसलिंग फॉर योर प्रिपरेशन और हाउ टू गो अबाउट इट, ऑल द क्वेश्चंस विच वट एवर इज इन योर माइंड you can get answers for. So that's a great opportunity. The team of experts are always there to help you, and you should take benefit out of it, right? So this is it about the demo, and now we are going to start with our lecture today. And I'm starting with the hierarchy of courts. In today's class, we are going to discuss hierarchy of courts in India. जनरली बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है. हमें लगता है जब आप किसी आम इंसान से बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि किसी भी सिचुएशन में हाई कोर्ट जाया जा सकता है और हर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है. उन्हें नहीं पता होता है कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी कोई चीज़ है. सो वही आज थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Overview of the judiciary in India. The judiciary in India is structured to administer justice at different levels. Divided into three main tiers. We have Supreme Court. Okay, that's in Delhi. The Supreme Court है वो दिल्ली में है. Then we have high courts. High courts generally हर state का अपना high court है, मगर constitution में provision है कि एक जो दो states हैं तीन states हैं they can share high courts. And then we have subordinate courts. Also we have special courts and tribunals exist for specific issues.
कोई ऐसे इश्यूज हैं जैसे एनजीटी हो गया या मिलिट्री कोर्ट्स हो गए जो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर इशू के लिए बनाए गए हैं, दोज आर डिफरेंट. बट अदरवाइज जनरली it's divided into three categories, that is Supreme Court, then High Court, and then we have subordinate courts. There is further division under subordinate courts, which we'll see. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट, इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया. हम सबको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है. उनका जो भी डिसीजन है, ऑर्डर है, वो बाइंडिंग है थ्रू आउट द कंट्री ऑन ऑल द कोर्ट्स. नो कोर्ट इन इंडिया कैन ओवर रूल अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज द फाइनल वर्ड एंड वो हर किसी को फॉलो करना होता है. ठीक है, सो इट इज द एपेक्स कोर्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एपेक्स कोर्ट. अब जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, देयर इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब भी समझना जरूरी है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा डिस्प्यूट जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, ओरिजिनली ही वो वहीं जाएगा, तो उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं. कि ऐसा नहीं है कि वो पहले निचली अदालत में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा. दैट इज नॉट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही सबसे पहले जाएगा. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आपके जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, वो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट्स में नहीं जाते हैं. तो डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, और डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और अ डिस्प्यूट बिटवीन वन साइड देयर इज सेंटर प्लस सम स्टेट एंड ऑन द अदर साइड सम अदर स्टेट. तो इस तरीके के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं एंड दे विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. देन वी हैव एपेलेट जुरिस्डिक्शन. एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के थ्रू आएंगे, उसको हम एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं. कि निचली अदालत के फैसले को अब अपील में ऊपर भेजा जाए, तो जो ऊपर वाली अदालत होती है उसको एपेलेट कोर्ट बोला जाता है, जिसके पास अपील गई है, और उस कोर्ट के उस जुरिस्डिक्शन को एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहा जाता है. तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन हियर्स अपील्स अगेंस्ट हाई कोर्ट्स जजमेंट. हाई कोर्ट से जो जजमेंट आते हैं उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है. मगर ऐसा नहीं है कि हर एक हाई कोर्ट के जो जजमेंट और ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, विच विल आई डिस्कस व्हेन आई स्पेसिफिकली डिस्कस द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मोर डिटेल. बट जो जुरिस्डिक्शन है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, वो हाई कोर्ट से ही आप अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट को सरपास करके नहीं जा सकते. जनरली the decision of high court or the order of a high court is appealable in the supreme court. Then we have advisory jurisdiction. Advisory jurisdiction पॉलिटी में भी आपने सुना होगा. एडवाइजरी jurisdiction में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. अब ये भी बहुत एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का. जो ये एडवाइस करने की बात है, कोई हाई कोर्ट्स नहीं कर सकते हैं, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर. सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज ऑल्सो एन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट. तो मेजरली इन तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एंड देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू विच एग्जामिन्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एक्शंस. As we all know that Supreme Court is the protector of our constitution, is the protector of our fundamental rights. तो अगर कोई भी ऐसी लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस कुछ भी पास होता है विच इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर बिल्कुल कर सकता है. सो ये जुडिशियल रिव्यू होता है कि वो रिव्यू कर रहे हैं वेदर द लॉ और द ऑर्डर और ऑर्डिनेंस वट एवर इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को वायलेट करेगा तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं और वो फिर वैलिड नहीं रहेगा, उसको एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगा. सो ये जो प्रोसेस है, ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है. ये वो रिव्यू नहीं है कि अपने ही जजमेंट को रिव्यू करना, वो रिव्यू नहीं है ये. जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो लॉज हैं, जो ऑर्डिनेंसेस हैं, या कोई भी एनी रूल, रेगुलेशन, वट एवर इज मेड, इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, then that can be declared as unconstitutional and it will not be applicable in India anymore. So that is judicial review. So these are four jurisdictions of the Supreme Court. Then we have high courts. Each state or group of states, union territories has a high court. राइट. तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास ये प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि एवरी स्टेट कैन हैव अ हाई कोर्ट, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज दैट सम स्टेट्स कैन शेयर अ हाई कोर्ट. जैसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स है, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, अभी ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इज ऑल्सो शेयरिंग, राइट. तो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर किसी एक हाई कोर्ट के अंडर भी आ सकते हैं.
ओके। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो दिल्ली ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। अदरवाइज जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसी ना किसी स्टेट के अंडर आती हैं, और जो उनके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं फिर वो उन हाई कोर्ट्स में जाते हैं। अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जनरली अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जो क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस होते हैं उनकी एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट तक अपील नहीं जाती है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मगर हाई कोर्ट तक अपील आपकी सिविल कोर्ट, सिविल मैटर्स या क्रिमिनल मैटर्स में जाती है। और हाई कोर्ट उसमें आप बहुत सारे जजमेंट्स देखेंगे जहां पर ऐसा होता है, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में और फिल्टर होके जाती है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डिसीजन। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, एंड देन वी हैव हाई कोर्ट, तो अपील में हाई कोर्ट के पास कई सारे केसेस जाते हैं, तो वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। सो हाई कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है रिगार्डिंग सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। कुछ जगहों पर जरूर ऐसा है कि कुछ केसेस हैं जो डायरेक्टली हाई कोर्ट्स में ही जाते हैं, वो स्टैट्यूट्स में ही लिख दिया गया है। तो जो स्टैट्यूट्स में जो प्रोविजन दी गई है वो फिर उस तरीके से ही होगी कि अगर स्टैट्यूट में लिख दिया है कि ये डिस्प्यूट हाई कोर्ट में ही जाएगा तो दैट इज डूएबल, और वो होता भी है, और वो सिर्फ हाई कोर्ट में जाते हैं डायरेक्टली, देन दे डोंट हैव टू गो टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बट अदरवाइज जनरली यहाँ जो केसेस होते हैं वो नीचे से ही शुरू होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट में ही जाते हैं, और उसके बाद अपील में वो हाई कोर्ट्स में जाते हैं। हाई कोर्ट ऑल्सो है सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ये बहुत जरूरी है कि जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स के कंट्रोल में होते हैं। सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है कि उनका हाउ दे विल वर्क, उन किस लैंग्वेज में होगा, किस तरीके से करेंगे, वो सारा कुछ हाई कोर्ट डिटरमाइन करती है। कितने हु विल हैव व्हाट पावर, और कितना जो जजेस होंगे, किसका एरिया क्या होगा, ऑल दोज थिंग्स हाई कोर्ट हैज द supervisory control over such things. Then we have subordinate courts. Subordinate courts हैं operate at the district and lower levels. District courts की अगर हम बात करें, सिविल केसेस में हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं और क्रिमिनल केसेस में हम सेशंस जज बोलते हैं। देखिए, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिविल डिस्प्यूट है तो वी से डिस्ट्रिक्ट जज, और क्रिमिनल डिस्प्यूट है तो हम कहते हैं सेशन जज। उनकी रैंक में पर से कोई फर्क नहीं होता। उसी तरीके से उसके बाद है सबॉर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट दैट इज सबॉर्डिनेट जज, सिविल जज जो होते हैं वो सीनियर डिवीजन, लोअर डिवीजन। एंड देन क्रिमिनल कोर्ट्स में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो मजिस्ट्रेट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सो मजिस्ट्रेट वर्ड हम यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल केसेस, एंड जजेस वर्ड हम यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू सिविल केसेस। इससे पता चलता है कि जो कोर्ट है, वो पर्टिकुलर कोर्ट वो किन मैटर्स के साथ डील कर रहा है। राइट, सो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभार हम उनको बहुत लूजली यूज करते हैं without knowing what it actually means. So this is subordinate courts. And then we have, of course, special courts and tribunals. They handle specific legal issues. फैमिली कोर्ट्स हो गए, दिल्ली में तो बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। फैमिली कोर्ट्स, एनआई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, बहुत अच्छा डिवीजन दिया हुआ है। सो we have family courts. Then we have consumer dispute redressal forums. We have national company law tribunal, debt recovery tribunals. We have CAT for central administrative tribunal for all the service matters. We have CAT. Then we have NGT. तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर एरिया से डील करने के लिए ही बनाए गए हैं। राइट, तो दैट इज अनदर लेवल ऑफ इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, बट जनरली it is Supreme Court, and then we have high courts, and then we have district courts, and under that we have subordinate courts. Special courts and tribunals are, I will are not like below subordinate courts, but they are like equivalent to, it can be equivalent to that, or they can go hierarchy wise, they can go under. Right, so these are the hierarchy of courts which I wanted to share with you, and I hope you learned something new and it helped you in your understanding of the hierarchy of course. If you have any question, you can put it in the description box and I'll do my best to answer it. Right. So thank you so much for watching. Keep learning.